In this video, we will discuss inductive method to construct economic theories. This is part 5b of the 5 videos on methodology of economics as a social science. Part 1 is related with economics as a social science. In part 2, you will find hypothesis, theory and law. Assumptions are explained in part 3. Part 4 is related with positive and normative economics. Part 5 is divided into two parts, 5a and 5b. In 5a, you will find deductive method, and here in 5b, we will discuss inductive method to construct economic theories. First is the introduction of inductive method. This method is propounded by many economists like Roscher, Hildebrand. This is Hildebrand, ये R नहीं है. फ्रेडरिक लिस्ट, क्लिफ लेस्ली एट्सेट्रा. ये कुछ इकोनॉमिस्ट हैं जिन्होंने ये मेथड propound किया है, यूज़ किया है, इसको प्रेजेंट किया है. विलियम जॉर्ज फ्रीडरिच रॉशर was a German economist. Roscher tried to establish the laws of economic development by using the historical method from the investigation of history's legal, political, cultural, and other aspects. Bruno Hildebrand was a German economist representing the older historical school of economics. His economic thinking was highly critical of classical economists, especially David Ricardo. His magnum opus was Economics of the Present and the Future in 1848. The basic aim of this work was to establish laws of economic development. Hildebrand also stated that economic development was linear, not cyclical. George Friedrich List was a German-American economist who developed the national system of political economy. He was a forefather of the German historical school of economics. He advocated imposing tariffs on imported goods while supporting free trade of domestic goods. Thomas Edward Cliff Leslie was an Irish jurist and economist. He was professor of jurisprudence and political economy in Queen's College, Belfast, Northern Ireland. He developed the idea of consumer sovereignty but insisted that the analysis of demand should be based on historical and comparative institutional framework. In economics, the law of demand, the law of consumption, Malthusian theory of population, etc., all are based on this method. तो इकोनॉमिक्स में जो भी हम स्टडी करते हैं मॉडर्न इकोनॉमिक्स में लॉ, जैसे फॉर एग्जांपल लॉ ऑफ डिमांड है, लॉ ऑफ कंजम्पशन है, माल्थस की पॉपुलेशन थ्योरी है, ये सभी इसी से मेथड पर बेस्ड हैं. Thomas Robert Malthus was an English cleric, scholar, and influential economist in the fields of political economy and demography. In his 1798 book, An Essay on the Principle of Population, Malthus observed that an increase in a nation's food production improved the well-being of the populace, but the improvement was temporary because it led to population growth, which in turn restored the original per capita production level. This method is also known as, इस मेथड को इन नामों से भी जाना जाता है, एक्सपेरिमेंटल मेथड, एनालिटिकल मेथड, स्टैटिस्टिकल मेथड, एम्पिरिकल मेथड, पोस्ट प्रायरी मेथड, हिस्टोरिकल मेथड. ये कुछ और नेम्स हैं इस मेथड के.
What is the definition of inductive method? According to Professor Wilson G., inductive method is the process of reasoning from particular to general और फ्रॉम इंडिविजुअल टू यूनिवर्सल। जब हम पर्टिकुलर से जनरल की तरफ जाएं या इंडिविजुअल से यूनिवर्सल की तरफ जाएं, देन इट इज़ नोन एज द इंडक्टिव मेथड। ये एक एग्जांपल है, बड़ी इंटरेस्टिंग है और यूज़फुल है। फॉर एग्जांपल, मार्शल इज़ अ मैन एंड मॉर्टल। हमने स्टडी किया, हमने देखा कि कोई मार्शल है, वो मैन है, ह्यूमन बीइंग है, एंड वो मॉर्टल हैं। मॉर्टल मीन्स मरणशील हैं, मीन्स एक दिन उन्होंने मरना ही है। सिमिलरली हमने किसी और पर्सन को स्टडी किया, रॉबिन्स इज़ अ मैन एंड मॉर्टल, केन्स इज़ अ मैन एंड मॉर्टल। सो जिसको भी हम देख रहे हैं, वो जिस मैन को भी हम देख रहे हैं वो मॉर्टल है। तो ये पर्टिकुलर बातें हैं, इंडिविजुअल लेवल की बातें हैं, पर सभी के साथ ऐसे हो रहा है, इसलिए हमने एक जनरल कंक्लूजन निकाला, यूनिवर्सल कंक्लूजन निकाला दैट मैन इज मॉर्टल। दिस इज द इंडक्टिव मेथड। नाउ व्हाट आर द स्टेप्स इन दिस मेथड? फर्स्ट इज collection and organization of data. In the first step, more and more facts on economic problems are collected and organized. अब यहीं पे एक डिफरेंस है, मेजर डिफरेंस इंडक्टिव मेथड एंड डिडक्टिव मेथड में। जो डिडक्टिव मेथड था, जो हमने 5A वीडियो में दिया हुआ है, उसमें जो हाइपोथेसिस बनाया जाता है वो डेटा कलेक्ट करके नहीं बनाया जाता, वो रियल वर्ल्ड इवेंट को देख के इमेजिनरी ही बनाया जाता है। यहाँ पर इंडक्टिव मेथड में डेटा कलेक्ट करके उसको ऑर्गेनाइज करके फिर बनाया जाता है हाइपोथेसिस। दैट इज द सेकंड स्टेप। ऑन द बेसिस ऑफ कलेक्टेड डेटा, हाइपोथेसिस इज फार्मुलेटेड। फॉर एग्जांपल, data on contribution of different sectors in national income of India shows the rising importance of secondary and tertiary sectors. तो पहले हम डाटा कलेक्ट करते हैं, फिर हम उसके बेस पर हाइपोथेसिस बनाते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे हम यहाँ पे देखें, अगर मान लो आप इंडियन इकॉनमी का आफ्टर इंडिपेंडेंस डाटा कलेक्ट करो कि टोटल नेशनल इनकम में तीनों जो सेक्टर हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, उनका कितना कितना परसेंट शेयर है, तो यू विल रियलाइज दैट सेकेंडरी सेक्टर का एंड टर्शरी सेक्टर का शेयर बढ़ रहा है। तो उससे हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं, हाइपोथेसिस बना सकते हैं कि आने वाले टाइम में क्या होगा, या सेकेंडरी सेक्टर का टर्शरी सेक्टर का शेयर ज़्यादा होगा। दिस इज द थर्ड स्टेप, prediction or inference. In the third step, logical conclusions and predictions are made on the basis of this. And finally, verification. In the fourth step, the truthfulness of prediction is verified on the basis of real facts. तो जब फिर वो टाइम आएगा प्रेडिक्शन को जज करने का, फिर हम रियल फैक्ट के साथ उसको टेस्ट करेंगे, उसको ट्रूथफुलनेस की को चेक करेंगे, वेरीफाई करेंगे, और अगर वो सही हुआ तो हम उसको एज अ थ्योरी, एज अ लॉ मान लेंगे। दिस इज द इंडक्टिव मेथड। Now, merits of inductive method. First, more realistic conclusions. Because these conclusions are drawn on the basis of historical events, actual facts and experiments. तो जो भी कंक्लूजन हमने बनाए वो हिस्टोरिकल इवेंट जो रियल हुए थे उसके बेस पर बनाए, डाटा कलेक्ट करके बनाए, एक्चुअल फैक्ट के बेस पर बनाए और एक्सपेरिमेंट करके बनाए। इसलिए ये मेथड जो है ज़्यादा रियलिस्टिक है। Possibility of verification. The inferences drawn by this method can be verified through historical experiences, actual experiments and real facts. तो यही तीन चीज़ों की वजह से हम इसको दोबारा भी वेरीफाई करते हैं और कर सकते हैं। जैसे फोर्थ स्टेप है,
जो भी हमारे कंक्लूजन है हम उसको वेरीफाई करते हैं on the basis of our experience, on the basis of our fact, on the basis of experiment. Dynamic approach. In this approach, new data are collected in the context of changed economic conditions or on the basis of new experiences. Old conclusions are re-verified and if necessary, same are modified. तो इस मेथड में क्या होता है, हम जब भी कोई इकोनॉमिक कंडीशन चेंज हो उसके हिसाब से नया डाटा कलेक्ट करते हैं, फिर उसको स्टडी करते हैं और फिर उसको हमारे नए एक्सपीरियंस के साथ री-वेरीफाई करते हैं। और अगर हमारा कंक्लूजन सेम हो तो हम उसी थ्योरी को मान लेंगे, अगर मान लो कुछ ज़रूरत पड़े फिर हम उसको मॉडिफाई करेंगे। इट मीन्स हमारी जो थ्योरी है वो डायनामिक होगी क्योंकि वो टाइम टू टाइम मॉडिफाई होती रहेगी। Helps in future investigation. The general theory formulated by this method serve as the starting point for future investigation. तो future investigation भी हम कर सकते हैं क्योंकि इसमें जो भी हमने स्टडी किया वो डाटा के बेस पर किया, तो इसी स्टेप को हम दोबारा फिर कर सकते हैं, इसी एक्सपेरिमेंट को दोबारा फिर कर सकते हैं, इसलिए फ्यूचर इन्वेस्टिगेशन में इसकी हेल्प मिलती है। Relativity of the laws. This method makes it clear that all economic laws are not universal. Rather, they are relative. For example, economic laws that hold good under given time or place may not hold good under all conditions and places. तो इसमें हमें ये भी पता चला कि जो भी इकोनॉमिक लॉज हैं वो ज़रूरी नहीं कि यूनिवर्सल हों। आप ये कहो कि सोशल साइंस के जो भी लॉज हैं, थ्योरीज हैं, उनका यूनिवर्सल होना ज़रूरी नहीं है। किसी पार्ट पर, किसी प्लेस पर, किसी टाइम पर हो सकता है वो थ्योरीज गुड हों, किसी दूसरी प्लेस पर, दूसरे टाइम पर हो सकता है वो थ्योरीज ना ठीक हों। अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल देखें, जैसे मान लो डेवलप कंट्रीज़ हैं, डेवलप कंट्रीज़ में प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पे सप्लाई ग्रेटर देन डिमांड है, तभी वो दूसरी कंट्रीज़ में जाकर अपना सामान सेल करते हैं। बट अंडर डेवलप कंट्रीज़ में अगर हम देखें तो ये प्रॉब्लम है, डिमांड ग्रेटर देन सप्लाई है, तभी वो दूसरी कंट्री से इंपोर्ट करते हैं। सिक्स्थ मेरिट, कॉम्प्लीमेंट्री टू डिडक्टिव मेथड। थ्योरीज डिराइव्ड ऑन द बेसिस ऑफ डिडक्टिव मेथड, जो हमने 5A में दिया हुआ है वीडियो में, आर टेस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ इंडक्टिव मेथड, क्योंकि उन थ्योरीज को हम लास्ट स्टेप में फिर डाटा के बेस पर वेरीफाई करते हैं। इट मीन्स after verification, inductive method can guide accordingly the deductive method. It means deductive method को भी पूरा होने के लिए inductive method की ज़रूरत पड़ती है. So these are the merits of the inductive method. Now demerits. First is possibility of bias, because the investigator may select arbitrary data. Arbitrary data means based on personal whim, that is a sudden change in mind. तो जो इन्वेस्टिगेटर है जब वो डाटा कलेक्ट करेगा, क्योंकि डाटा कलेक्ट करना इस मेथड में फर्स्ट स्टेप है, तो जैसे ही वो डाटा कलेक्ट करेगा हो सकता है डाटा की इन्फॉर्मेशन देने वाला रिस्पोंडेंट सही इन्फॉर्मेशन ना दे, और ये भी हो सकता है कि डाटा कलेक्ट करने वाला सही इन्फॉर्मेशन कलेक्ट ना करे, तो अपनी मर्ज़ी से वो डाटा को इंटर मैनिपुलेट कर ले। इट मीन्स ये बाइस की पॉसिबिलिटी है। Second demerit, difficult and expensive method, because collection, organization, analysis of data involve lot expenditure of time. क्योंकि डाटा को कलेक्ट करने में, ऑर्गेनाइज करने में, एनालिसिस करने में टाइम चाहिए, पैसा चाहिए, उस हिसाब से ये डिफ़िकल्ट भी है और एक्सपेंसिव भी है। Unreliable conclusions. If the conclusions are drawn on the basis of arbitrary and biased data, अगर हम डाटा आर्बिट्रेरी के बेस पर, इस पॉइंट के ऊपर ही रिलेटेड है ये थर्ड पॉइंट, अगर हमारा डाटा ही रॉन्ग होगा तो उसके बेस पर जो हम कंक्लूज़न निकालेंगे वो भी रॉन्ग होंगे, बाइस्ड होंगे, तो वो अनरिलायबल होंगे। अनसर्टन कंक्लूजन्स,
बिकॉज दीज कंक्लूजन्स आर बेस्ड ऑन स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन। क्योंकि ये जो कंक्लूज़न हम बनाएंगे वो डाटा कलेक्ट करके उसके बेस पर बनाएंगे। तो अगर मान लो डाटा ठीक भी हो तो भी जो कंक्लूज़न है वो सर्टन नहीं होंगे, अनसर्टन होंगे। क्यों? अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर बोल्डिंग, statistical information can only give us proposition where truth is more or less probable. It can never give us certainty. जो स्टैटिस्टिक्स होती है, स्टैटिस्टिक्स हमें एग्जैक्ट नहीं बताती, वो हमें इवेंट की एस्टिमेशन देती है कि इसके आसपास इवेंट होगा। तो 80% 90% वो सही होता है, बट उसमें कुछ परसेंट एरर्स हो सकते हैं। इट मीन्स स्टैटिस्ट के जो रिजल्ट हैं स्टैटिस्टिक्स के, वो एस्टिमेशन है, ट्रुथ नहीं है 100%। तो जो प्रोबेबल रिजल्ट हैं वो, इसलिए वो प्रॉपर सर्टन नहीं है, इसलिए वो कंक्लूजन जो है वो अनसर्टन है। इसमें फॉर एग्जांपल अगर हम डिस्कस करें, जैसे मान लो कोई एक्स सीरीज़ है 10, 20, 30, 40, 50। अगर हम इसकी अर्थमेटिक मीन निकालें तो वो कैसे निकालेंगे? इसको ऐड करेंगे, दिस इज़ 150, फिर इसको 1 2 3 4 5 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आ गया 30। अर्थमेटिक मीन आ गई 30, जिसको हम कहते हैं एवरेज। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इस सीरीज़ में जो वैल्यूज़ हैं वो 30 के आसपास हैं, बट कुछ वैल्यूज़ 30 से नीचे हैं, कुछ वैल्यू 30 से ऊपर हैं। तो 30 जो है, सारी वैल्यूज़ 30 30 30 30 तो नहीं हैं, बट 30 के आसपास हैं। मतलब जो हमें स्टैटिस्टिक्स ने रिजल्ट दिया वो एक एस्टीमेट है, प्रोबेबल वैल्यूज़ हैं, एग्जैक्ट नहीं है वो कि 30 ही हैं 5 वैल्यूज़, बट 30 के आसपास हैं। तो दिस इज़ द limitation of the statistics, that statistics give us estimation, not the exact. अगर और किसी एग्जांपल से मैं समझाऊं, जैसे मान लो इंडिया की पॉपुलेशन है, हम बोलते हैं कि मान लो 135 करोड़ है, तो इट इज़ नॉट एग्जैक्टली 135 करोड़, इट मे बी 135 करोड़ 60 लाख 3200 समथिंग। तो एग्जैक्ट कुछ होगा, बट इट इज़ ए estimate, it is an estimate that the population is around 135 crore 136 crore, like this. So statistics give us these type of probable answers. Limited scope, because these conclusions are relative not universal, क्योंकि ये conclusion universal नहीं है, सभी situations पर similar conclusion apply नहीं होते, therefore इसका जो scope है वो limited है। Less useful in economics, दिस मेथड इज़ मोर यूजफुल फॉर नेचुरल एंड मेडिकल साइंसेस, जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, वेयर एक्सपेरिमेंट्स आर पॉसिबल इन लेबॉर्ट्रीज, क्योंकि वहाँ पे हम डाटा कलेक्ट करके इसका एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। हमारे लिए बार बार डाटा कलेक्ट करना मुश्किल है, क्योंकि हमारी जो लेबॉर्ट्री है वो सोसाइटी है, वहाँ से हमें इंफॉर्मेशन गैदर करना, उसको स्टडी करना कॉस्टली है, एक्सपेंसिव है। इनकम्प्लीट मेथड, construction of economic theories requires hypothesis and reasoning along with statistical data. Thus, this method is based on deductive method. तो जो भी हम conclusion बनाते हैं उसके लिए हमें डिडक्टिव मेथड की लॉजिकल रीजनिंग भी चाहिए। सिर्फ डाटा को स्टडी करके आंसर निकाल के बात नहीं बनती, हमें उसको इंटरप्रेट भी करना पड़ता है, और इंटरप्रेट करने के लिए हमें चाहिए लॉजिकल रीजनिंग, जो हमें डिडक्टिव मेथड से मिलती है। इट मीन्स डिडक्टिव मेथड के बिना हम इंडक्टिव मेथड को स्टडी नहीं कर सकते। तो ऐसे ही हमने ऊपर देखा था कि डिडक्टिव मेथड को हम इंडक्टिव के बिना नहीं स्टडी कर सकते। इट मीन्स दोनों मेथड जो हैं दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। ये हमारा नेक्स्ट हेडिंग है, डिडक्टिव इंडक्टिव कॉम्प्लीमेंटरिटी। Economists like Schmoller, Wagner, Eric Roll, Durbin, Lipse, Steiner, Samuelson, etc. are of the view that both of these methods are complementary to each other. दोनों मेथड्स एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं।
Any debate on the superiority of one method over the other is meaningless. तो ये कुछ इकोनमिस्ट हैं जिन्होंने ये कहा है कि दोनों मेथड्स डिडक्टिव एंड इंडक्टिव एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, पूरक हैं, दोनों मिलके ही कुछ यूज़फुल चीज़ बनती है। अगर हम कुछ डिस्कस करें, बहस करें कि दोनों में से कौन सा मेथड बेटर है, सुपीरियर है, तो वो डिस्कशन मीनिंगलेस है। मीन्स हमें ये डिस्कस नहीं करना चाहिए कि कौन सा मेथड ज़्यादा बेटर है। गुस्ताव फ्रीडरिच श्मोलर was the leader of the younger German historical school of economics. He was a founder and long-time chairman of the German Economic Association. Adolf Wagner was a German economist and politician and public finance scholar and advocate of agrarianism. Wagner's law of increasing state activity is named after him. Eric Roll was a British academic economist, public servant, and banker. By the age of 28, Roll became Professor of Economics and Commerce at University College Hull, England. And he published a famous book, History of Economic Thought, in 1938. James Durbin was a British statistician and econometrician, known particularly for his work on time series analysis and serial correlation. Richard Lipsey is a Canadian economist. He is currently Professor Emeritus of Economics at Simon Fraser University, Canada. Elizabeth Steiner was Professor of Economics at Indiana University, USA. Steiner published a famous book, Methodology of Theory Building. Paul Samuelson was an American economist and the first American to win the Nobel Memorial Prize in Economic Sciences in 1970. He was the doctoral student of Joseph Schumpeter. तो इन इकोनॉमिस्ट ने ये रियलाइज़ किया है कि दोनों मेथड, डिडक्टिव इंडक्टिव मेथड, दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, दोनों ही हमें चाहिए। फॉर एग्जांपल श्मोलर ने कहा है, डिडक्टिव एंड इंडक्टिव मेथड्स, बोथ मेथड्स आर नीडेड, दोनों मेथड ही हमें चाहिए फॉर साइंटिफिक थॉट एज द राइट एंड लेफ्ट फुट आर नीडेड फॉर वॉकिंग। जैसे हमें दोनों पैर चाहिए चलने के लिए, ऐसे ही साइंटिफिक थ्योरी बनाने के लिए हमें दोनों मेथड्स चाहिए, डिडक्टिव एंड इंडक्टिव। वैगनर ने कहा है, द ट्रू सोल्यूशन ऑफ द कंटेस्ट अबाउट मेथड्स इज नॉट टू बी फाउंड इन द सिलेक्शन बिटवीन डिडक्टिव एंड इंडक्टिव बट इन द एक्सेप्टेंस ऑफ बोथ। तो अगर हम ये डिसाइड करना हो कि दोनों में कौन सा मेथड चूज़ करें, तो ये चूज़ करना कि डिडक्टिव ले लो या इंडक्टिव ले लो, ये ठीक नहीं होगा, बल्कि दोनों ही लेने चाहिए मेथड्स। एरिक रोल के अनुसार बोथ दीज मेथड्स आर इंटेग्रेटेड इनटू वन अनदर, दे कैन नॉट बी सेपरेटेड। तो एरिक रोल के अनुसार ये दोनों ही मेथड्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इंटरलिंक्ड हैं, दोनों को हम एक दूसरे से अलग कर ही नहीं सकते। डर्बिन के अकॉर्डिंग फैक्ट्स डू नॉट स्पीक फॉर देमसेल्व्स। फैक्ट्स हम यूज़ कर रहे थे इंडक्टिव मेथड में। इट इज़ ओनली एनालिसिस, कंपैरिजन, हाइपोथेसिस एंड प्रोफेसी दैट दे कैन बी मेड टू स्पीक आउट। ये चीज़ें हम यूज़ करते हैं डिडक्टिव मेथड में। तो स्टैटिस्टिक्स के रिजल्ट अपने आप नहीं बोलते, हमें लॉजिकल रीजनिंग से उसकी इंटरप्रिटेशन करनी पड़ती है। प्रोफेसी का मतलब होता है अ प्रेडिक्शन ऑफ व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर। अकॉर्डिंग टू लिप्से एंड स्टाइनर, इन्होंने कहा है, बोथ डिडक्टिव एंड इंडक्टिव मेथड्स आर साइंटिफिक एंड आर यूज्ड इन इकोनॉमिक एनालिसिस। दोनों मेथड्स ही साइंटिफिक हैं और दोनों ही यूज़ होते हैं, दोनों को ही यूज़ करना पड़ता है इकोनॉमिक एनालिसिस में। एंड फाइनली सैमुअल्सन ने कहा है, प्रॉपरली अंडरस्टूड, अगर ध्यान से देखा जाए, डिडक्टिव एंड इंडक्टिव कैन नॉट बी इन कन्फ्लिक्ट। तो दोनों में कोई झगड़ा है ही नहीं, दोनों में कोई चूज़ करने वाली बात है ही नहीं। क्यों? क्योंकि दोनों ही
चाहिए होते हैं। दीज आर सम रेफरेंस बुक्स जिनमें से ये पूरा टॉपिक बनाया है, मेथडोलॉजी ऑफ इकोनॉमिक्स एज अ सोशल साइंस। एच एल आहूजा की बुक है एडवांस्ड इकोनॉमिक थ्योरी, पब्लिश्ड बाय एस चांद, न्यू दिल्ली। पी एन हेस एंड सी जी रॉस की बुक है प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड एनालिटिकल अप्रोच, पब्लिश्ड बाय वेस्ट पब्लिशिंग कंपनी, मिनेपोलिस, सेंट पॉल। टी आर जैन एंड ए एस संधू की बुक है माइक्रो इकोनॉमिक्स, पब्लिश्ड बाय वी के ग्लोबल पब्लिकेशंस, न्यू दिल्ली। आर जी लिप्से एंड के ए क्रिस्टल की बुक है इकोनॉमिक्स, पब्लिश्ड बाय ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, न्यू दिल्ली। डोमिनिक सिल्वेटर की बुक है माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी, पब्लिश्ड बाय टाटा मैकग्रा-हिल, न्यू दिल्ली। This is the Shom series book. So this was all about 5B inductive method and all about methodology of economics as a social science. For complete explanation of this topic, must watch all the 5 parts of this video. Fifth part has 2 parts, further division. It means 6 videos on this topic, methodology of economics as a social science. So thank you. Thanks for watching this video.